Hello and welcome to the We Learn Session 3 Entrepreneurs. In this session, we will going to cover about the introduction, the functions of entrepreneur and entrepreneur versus manager's relationship. So now as we were discussing about the what is entrepreneurship in our two sessions of entrepreneur, the entrepreneurship is basically the kind of in a business which entrepreneur will carry forward it. So it is what the capacity to take the risk, ability to own the organize and desire and capabilities to innovate and diversify. So that is a very obvious characteristics and the introduction kind of the entrepreneurship, that what is basically the entrepreneurship is. Now who is an entrepreneur? Yes, as we discuss about कि entrepreneur क्या होता है. अगर हम एक business को entrepreneurship कह रहे हैं तो उस business को carry forward करने वाले person को हम लोग entrepreneurial बोलते हैं. So the person conducting own business, the person who set up the business deals in order to make the profit. सिर्फ प्रॉफिट्स को जनरेट करने के लिए या अपने लिए एक लिविंग्स जनरेट करने के लिए जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उस पर्सन के थ्रू दैट कम्स इनटू द एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज. द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन इकोनॉमिक वेंचर, वन हु ओन, ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड अज्यूम्स द रिस्क ऑफ द बिजनेस. वो पर्सन जो एक एक्चुअली वेंचर स्टार्ट करता है, अपनी फाइनेंस रिसोर्स को एक्चुअली कलेक्ट करके एक्टिविटी एक आइडियाज़ के अंदर उसको इन्वेस्ट करता है. They actually start to organize it, to manage it, to participating in understanding the risk and forecasting the business all scenarios, whether positive and negatives. All these comes into the activities of entrepreneur. So that is why entrepreneurial work is to organize the economic venture, one who owns, organize, manage and assume the risk of the business. So in short हम इसे बोल सकते हैं that entrepreneur is a person who start an enterprise. He search for a change and respond to it. A number of concept was actually entrepreneurs के अंदर हम लोग अब study कर चुके हैं. So these are the kind of हमारा जो entrepreneurs होते हैं, they were those people जो business को start करते हैं, जो business के अंदर किसी भी आने वाले तरीके के changes को अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करके उस पर रिस्पॉन्सेस करते हैं. सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली गैदरिंग और कोलैबोरेटिंग ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल इन दी मार्केट. मार्केट के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं उन सबको क्लब करके एक बिजनेस, एक वेंचर स्टार्ट करना. दिस इज द वन ऑफ द अगेन द एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर. सो इट इज़ व्हाट इट कैन बी दी लैंड, लेबर एंड कैपिटल काइंड ऑफ एन रिसोर्सेज, जो कि एक बहुत बेसिक से रिसोर्सेज हम लोग स्टडी करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. So yes, these all are the basic introductions about the entrepreneur. That who is an entrepreneur? Entrepreneurs basically होते कौन है? Why entrepreneurship? Yes, this is the again one of the concept we have to study. इससे पहले जब we will actually discussing about the career options in the entrepreneurship कि entrepreneur in session 1 we probably discuss it that कि किस तरीके के entrepreneurship या क्यों entrepreneurship ज़रूरी होता है. So अगर एक basic scenario लिया जाए कि क्यों entrepreneurship ज़रूरी है, तो इसका one of the reason होता है just to get the monetary benefits and for the personal satisfaction which can be comes with the your self development, सेल्फ अर्निंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिस इन सब फैक्टर्स के थ्रू जितनी भी आपकी सेटिस्फैक्शन जनरेट होती है, जितने भी मॉनेटरी बेनिफिट्स जनरेट होते हैं, वो सब एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं. सो येस, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंट with the value by devoting the necessary times and efforts, by assuming the accompanying financial, psychological and social risk and receiving the resulting rewards of a monetary and the personal satisfaction. जैसा कि हमने बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप नॉर्मली इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी तरीके के मॉनेटरीज एंड पर्सनल बेनिफिट्स को जनरेट करना हो. बट येस, वो होता कैसे है? इट कैन बी हैपन बाय क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंट. आप जब किसी तरीके की डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट आइडियाज़ के साथ मार्केट में आते हो एंड यू एक्चुअली जनरेट द वैल्यू फॉर द योर टाइम, फॉर द एफर्ट्स, यू एक्चुअली give something to the market, you actually give something to the industry. So this all comes into the entrepreneurship, which is actually conduct as in the psychological and social risk of the which actually have this kind of a thing. So that is the why entrepreneurship क्यों होता है.
नाउ व्हाट आर द की फंक्शंस इन द बिजनेस, हमारे बिजनेस के अंदर कौन कौन से की फंक्शंस हैं जो कि एक कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग द की फंक्शंस ऑफ द बिजनेस विच इज यस, एक एंटरप्रेन्योर जब अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करता है तो ये सारे बिजनेस के फंक्शंस को उसे स्टडी करना पड़ता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. बट इससे पहले वन ऑफ वी जस्ट हैव अ डिस्कशन व्हाई the function of an entrepreneur is actually required. Yeah, what kind of functions they were actually required. There were always three kind of things they need to understand. What is innovation? The first is innovation. Second is risk and uncertainty bearing. एंड थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग. द फर्स्ट इज कि किस तरीके के इनोवेशन आइडियाज के साथ वो मार्केट के अंदर बेसिकली आए हैं, दैट इज इनोवेशन पार्ट. देन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बेयरिंग, दैट मीन्स वो कितना रिस्क एक्चुअली मार्केट के अंदर बेयर करेंगे. And after that, understanding that risk and uncertainty, the third one is the organization building. That means वो किस तरीके से अपनी एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करेंगे, किस तरीके से उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करेंगे. दैट इज दी थ्री बेसिक सिनेरियोज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. एंटरप्रेन्योर्स किसी भी तरीके की एंटरप्रेन्योरशिप को स्टडी करते हैं, तो उसे किसी भी तरीके की एंटरप्राइज को स्टार्ट करते हैं, सो दे नीड टू स्टडी अबाउट दीज थ्री फंक्शन. दैट इज इनोवेशन, risk and uncertainty bearing, third is organization building. So now yes, we were moving towards the key functions and businesses. हमारे businesses के अंदर कौन कौन से key functions होते हैं जिसमें एक एंटरप्रेन्योर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसमें एक्चुअली वर्क ऑन करना पड़ता है, बिकॉज इट्स एक्चुअली स्टार्टिंग द बिजनेस. द फर्स्ट, कस्टमर सर्विसेज. सेकेंड, administration and IT support. Third, marketing and sales. Fourth, human resource. Fifth, research and development. Sixth, finance. And seventh is operations. So there were the 7 functions in business. Business के अंदर 7 functions होते हैं जो कि हमेशा टेक केयर करने पड़ते हैं एक बिजनेस पर्सन को जब वो अपना खुद का किसी तरीके का बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है. First, we will start discussing about the human resources. Yes, if we were discussing about the human resources, so it is always related to including all the legal rights and responsibilities of employers and employees. Because आप हमेशा ऐसा नहीं है कि आपकी जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है, आपका कोई भी बिजनेस है वो विदाउट ह्यूमन के चलेगा. सो इन दैट टर्म्स इफ यू मस्ट हैव अ पीपल इन इट. सो इन दैट केस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के क्या राइट्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सो दे ऑल मस्ट नो अबाउट दिस, जिसके लिए वी नीड द एरिया काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. सो दीज आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन. ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती क्या है? So the first one is recruitment, retention and dismissal. That means आप अगर किसी भी न्यू पर्सन को रिक्रूट कर रहे हो, how you will recruit it. रिटेंचमेंट जैसा कॉन्सेप्ट है तो किस तरीके से रिटेंचमेंट होगी, अगर किसी तरीके से डिसमिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है तो किस तरीके से आप उसे डिसमिस करोगे. सो दिस इज हर ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन या एक बिजनेस के अंदर अगर आप किसी भी तरीके के पर्सन को हायर करते हो तो उस केस में उसका भी एक आने का प्रोसीजर होता है एंड लीविंग प्रोसीजर भी होता है. सो यू हैव टू फॉलो दैट प्रोसीजर. सो इन दैट टर्म्स इट इज रिक्रूटमेंट, रिटेंशन एंड डिसमिस. Then working condition. Yes, employees are always working in the organization और वो organization के अंदर सिर्फ ऐसे ही blindly work नहीं करते. They need certain kind of condition, working condition, working environment. जितनी ज़्यादा healthy and positive working conditions होंगी उतनी ही ज़्यादा effectively employees काम perform करते हैं business के अंदर. So that comes into the working condition. Then ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन इज दी अनदर. आप अपने हिसाब से जब अपने बिजनेस के किस तरीके के कॉन्सेप्ट हैं, बिजनेस किस तरीके से आगे फर्दर लीड करना चाहता है, इन सब तरीकों को ध्यान में रखते हुए देयर ऑलवेज अ ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड करते हो, उन्हें किसी तरीके की डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाते हो, यू प्रोवाइड प्रमोशंस ऑल्सो. सो दीज ऑल कम्स इनटू द ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन. Then another is employees organization and union. That means किस तरीके की आपकी एम्प्लॉयज़ की यूनियन है, किस तरीके की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है. So that comes into the employees organization. That means the committees, the unions, the joint venture kind of a thing was happening into the particular at the small region. तो उस तरीके से उन सब चीज़ों को हैंडल करना, it's all comes into the
the human resource area. And then another is the health and safety. Health and safety is another concept जो कि अराइज होता है in terms of आपके यहाँ पर अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो एम्प्लॉयज़ ऑलवेज हैव अ सर्टन काइंड ऑफ एन हेल्थ एंड सेफ्टी कॉन्सेप्ट कि आप उन्हें सेफ्टी, सिक्योरिटी और हेल्थ प्रोवाइड करवाओ. देन येस अनदर सेकेंड एरिया जो कि आउट ऑफ 7 जो फंक्शंस हम लोगों ने डिसाइड किए थे, फंक्शंस में से दी अनदर वन इज दी फाइनेंस. येस, फाइनेंस बगैर आई थिंक प्रॉब्ली किसी भी फाइनेंस के बिजनेस परफॉर्म नहीं कर पाता. सो इन दैट टर्म्स येस वी नीड सर्टन काइंड ऑफ अ मनी एंड सर्टन काइंड ऑफ अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ताकि एक बिजनेस हेल्दी परफॉर्म कर सके. दैट इज द सेम concerning with the money and the future plans, preparing account, explain invoice, management accounts, financial accounts for shareholders, preparing wages and salaries again, obtaining capital resources, किसी भी तरीके के resources generate करने हो, accounts prepare करने हो, wages and salaries generate करने हो, this all comes into the finance part. So that comes into the finance area. Then administration and IT support. This is the रोल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की क्यों हमें एक आईटी सपोर्ट की और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो दिस इज़ वाई फर्स्ट इज क्लैरिकल वर्क. अगर किसी भी तरीके का क्लैरिकल वर्क है, आप क्लैरिकल स्टाफ्स होते हैं बिजनेस के अंदर, सो इन दैट टर्म्स यू नीड सर्टन काइंड ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना. दैट्स ऑल कम्स इनटू द एडमिन पार्ट. देन हेल्थ एंड सेफ्टी अगेन. सो दैट इज येस अपार्ट फ्रॉम द एचआर's हेल्थ एंड सेफ्टी कॉन्सेप्ट, आपकी एडमिन का भी वर्क होता है जस्ट टू प्रोवाइड द गुड एफिशिएंट पर्पसेस टू योर सोसाइटी ताकि आप उन्हें एक इफेक्टिव हेल्थ दे और सेफ्टी प्रोवाइड कर सको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सिक्योरिटी, येस, टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज दी ऑल्सो अ वर्क ऑफ एडमिन कि आप प्रॉपर सिक्योरिटी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवा सको. Support of in a software application, electronics communication and electronic transactions. That's very obvious. जब आप किसी भी तरीके की applications अपनी organization में use करो या किसी भी तरीके की software you were using in your business, so in terms of उन्हें भी किस तरीके से वो आपके business के अंदर deal करेंगे, किस तरीके से वो आपके business में help करेंगे, इसकी भी understanding ज़रूरी होती है. Then cleaning and maintaining is another work of admin कि किस तरीके से हम अपने जो वर्किंग कंडीशन की बात हो रही थी बिजनेस के अंदर, उसके अंदर वर्किंग कंडीशन में किस तरीके से हम प्रॉपर क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग कर सकते हैं. देन ऑपरेशंस. येस, ऑपरेशंस इज अगेन इट्स कंसर्न्ड विद द ऑपरेशन पार्ट. हमारा जितना भी प्रोडक्शन काइंड ऑफ पार्ट होता है, सो दैट इज दी वन ऑफ द मेन एक्टिविटी. अगर हम किसी भी टेंजिबल प्रोडक्ट्स के अंदर हैं तो ऑपरेशन भी एक मेन रोल प्ले करता है. दैट इज कि यू आर ऑब्टेन एंड कन्वर्ट द रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस इनटू गुड्स एंड सर्विसेज. So in that terms you were actually working on the operation part more. तो उसके लिए आपको किन किन तरीकों की किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. दैट इज़ बिल्डिंग एंड लैंड, इक्विपमेंट्स, पीपल, मटीरियल, यू नीड ऑल दिस. तो इन दैट टर्म्स इन सब चीज़ों को सही से ऑपरेट करना, सही से इनकी हेल्प लेना ताकि ये सारे रिसोर्सेज एक फर्दर एक फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें. सो दैट्स कम्स इनटू द ऑपरेशंस. Then marketing and sales is the another things we need to be consider. First one is yes, marketing and sales both are concerned with the customer needs. हम जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, जितनी भी सेल्स एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सारी हमारी कस्टमर नीड्स से ही रिलेटेड होती है. सो बोथ आर कंसर्न विद द कस्टमर नीड्स. सो यस, किसी भी तरीके की क्या क्या तरीके की एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं मार्केटिंग के अंदर. सो दैट इज फर्स्ट इज मार्केट रिसर्च. जब हम किसी तरीके की प्रॉपर मार्केट रिसर्च करते हैं, जब हम किसी तरीके की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं लाइक एडवर्टाइजिंग्स, लाइक पर्सनल सेलिंग्स और काइंड ऑफ द रेडियो, प्रिंट मीडियाज, एडवर्टाइजिंग, दीज ऑल कम्स इनटू द प्रमोशंस वन. देन येस अ सेल. अल्टीमेटली जब हम किसी भी तरीके की सेल्स एक्टिविटीज़ करते हैं, सो दीज ऑल कम्स इनटू द मार्केटिंग एंड सेल्स, जो कि नॉर्मली हर तरीके का बिजनेस इस तरीके मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एंड सेल्स एक्टिविटीज़ करता है. बिकॉज दिस इज द मेन एरिया जो एक एग्जिस्टिंग प्रोफाइल बनाए रखता है एक ऑर्गेनाइजेशन का. देन यस कस्टमर सर्विस. यू हैव अ कस्टमर, सो यू मस्ट रिक्वायर टू सेटिस्फाई योर कस्टमर. आपके पास कस्टमर्स हैं, सो सिर्फ कस्टमर्स होना ही असेंशियल नहीं होता है. कस्टमर्स को प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई
करना भी उतना ही ज़रूरी होता है. सो दैट इज़ वाई दी कस्टमर्स रिलेशनशिप और कस्टमर सर्विस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन द बिजनेस. सो अगर हम किसी भी तरीके की कस्टमर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो क्या क्या एक्टिविटीज़ इसके अंदर इंक्लूड होती हैं. दिस इज़ व्हाट providing information is the first activity, giving advice is another activity, providing credit facilities is another activity, delivering the goods, providing after sale service. यानी कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाओगे, किसी भी तरीके की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं. दैट इज वन ऑफ द थिंग टू जनरेट द कस्टमर सर्विस. सेकेंड, गिविंग द प्रॉपर एडवाइस. आप अपने कस्टमर्स को सही तरीके की प्रॉपर एडवाइस प्रोवाइड करवाओगे ताकि वो किसी भी तरीके की गलत सिनेरियोज पर ना जा सके. बिकॉज इफ़ यू नीड सर्टन काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद योर कस्टमर, उनको सही एडवाइस देना जरूरी है. सो दैट इज गिविंग देम एडवाइस. देन प्रोवाइडिंग द क्रेडिट फैसिलिटीज, बेनिफिट्स, क्रेडिट बेनिफिट्स की ओके आप लोन्स काइंड ऑफ या EMI प्रोसेस में आप पेमेंट कर सकते हो. दैट इज व्हाट प्रोवाइडिंग द क्रेडिट फैसिलिटी. देन डिलीवरिंग द गुड्स, deliver the accurate goods to your customer, that is again delivering the goods. Then providing the after sale services, that comes into आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद भी you still attached to your customer, आप उन्हें proper after sale services provide करवाएं. So these are the few activities जो कि हमें actually करते रहना चाहिए हमारे consumers के लिए to satisfy them. और इससे कंपनी की कस्टमर सर्विसेज भी enhance होती हैं. So this is which is one of the function of a business. रिसर्च एंड डेवलपमेंट. यस, अगर हम ये बोल रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑलवेज वर्क अंडर द क्रिएटिविटी, वो हमेशा एक क्रिएटिविटी कॉन्सेप्ट में रहता है, तो दिस इज द सेम. आप अगर किसी ना किसी तरीके की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हो, नॉट एज द साइंटिफिक वन, बट येस अगर आप किसी ना किसी तरीके की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हो, तो दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज बेसिकली रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग समथिंग टू दी सोसाइटी एंड डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी. सो येस, concerned with the developing new goods, services and updating the old ones. So these we need research and development. किसी तरीके का न्यू कॉन्सेप्ट लाके पुरानों को ख़त्म करना या उन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई करके और नया मार्केट में लेके आना. दिस इज़ द मेन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. एंड देन एक्टिविटी इंक्लूड, हम इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करते हैं. तो फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि हम टेक्निकल वाइज भी किसी तरीके की डेवलपमेंट कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. वी कैन से दैट फॉर द कस्टमर्स को और बेनिफिट्स या कस्टमर की लाइफ को थोड़ा सा ईजी एंड रिलैक्स बनाने के लिए. देन साइंटिफिक रिसर्च, हम किसी भी तरीके की साइंटिफिक रिसर्च के अंदर आ सकते हैं एज that can be related to any scientific factor. डिज़ाइन फीचर, जहाँ हम किसी भी तरीके की डिज़ाइनिंग मॉडिफिकेशंस, किसी भी तरीके की डिज़ाइन फर्दर डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट में आते हैं. एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, व्हेन वी एक्चुअली नीड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोडक्ट, हम अपने प्रोडक्ट की एक्चुअल परफॉर्मेंस को इन्हांस करना चाहते हैं. सो दैट्स कम्स इनटू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड IT. Yes, if we were talking about administration and IT, so administration and IT is more related to your board of governors, academic advisory councils, employees attendance, working hours, internet, intranet, securities. These kind of a thing is actually a work of the administration and IT. So now, yes, we were discussing about all 7 functions. So we were moving towards the difference between the entrepreneur and managers. इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर एंड व्हाट इज मैनेजर्स, तो हम यही डिस्कस करने वाले हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज एन एंटरप्रेन्योर इज इन्वॉल्व्ड विद द स्टार्टअप प्रोसेस, यानी कि व्हेन द बिजनेस स्टार्टेड द एंटरप्रेन्योरल रोल इज स्टार्टेड, राइट. बट वेयर एज मैनेजर्स कंसर्न, मैनेजर विल विद रनिंग द बिजनेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मैनेजर्स हमेशा आपके बिजनेस को हेल्प करते हैं रन अप करने में, दैट मीन्स वो लंबे समय तक काम करता है. दिस इज द वर्क ऑफ मैनेजर. एंड एंटरप्रेन्योर अज्यूम द फाइनेंशियल, मटेरियल एंड साइकोलॉजिकल रिस्क, whereas manager does not have to bear any kind of risk. It's very obvious. अगर एक बिजनेस की बात करें तो एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज वर्किंग फॉर द सर्टेन काइंड ऑफ इन रिस्क फैक्टर, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर्स हैं और उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने उसमें कुछ मटेरियल्स, कुछ रिसोर्सेज को पुट डाउन किया है. सो उसमें एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहेगा, बट जबकि एक मैनेजर को किसी तरीके का रिस्क फैक्टर नहीं होता. देन इट इज एंटरप्रेन्योर इज ड्रिवन बाय द परसेप्शंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. दैट मीन्स कि एंटरप्रेन्योर्स के पास कितनी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, वो कैसे उस अपॉर्चुनिटी पे वर्क ऑन करता है. दैट इज द एंटरप्रेन्योरल वर्क.
Whereas a manager by a resources he currently process it. That means उसके पास जो resources हैं वो उसी resources के अंदर perform करने वाला है. This is the manager's part. देन एन एंटरप्रेन्योर इनिशिएट चेंज. जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो किसी ना किसी तरीके के चेंज को लेकर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. वेर एज मैनेजर्स बेसिकली फॉलो द रूल्स एंड प्रोसीजर्स. वो रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं विच इज येस गिवन बाय द एंटरप्रेन्योर इटसेल्फ. देन एंटरप्रेन्योर इज हिज ओन बॉस. वो अपने आप में खुद बॉस होता है, जबकि मैनेजर इज अ हायर्ड एम्प्लॉय. वो हायर्ड एम्प्लॉय होता है. तभी एक जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो एंटरप्रेन्योर रोल के साथ स्टार्ट होता है, बट उस बिजनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए वी नीड मैनेजर रोल. देन द एंटरप्रेन्योर गेट द अनसर्टेन रिवॉर्ड्स. अनसर्टेन रिवॉर्ड्स आज है कल नहीं है, आज प्रॉफिट हुआ कल प्रॉफिट नहीं होगा, सो अनसर्टेन रिवॉर्ड्स होते हैं. बट अ मैनेजर गेट द फिक्स्ड रिवॉर्ड्स एंड सैलरी. येस, हमारे मैनेजर्स को उतनी ही फिक्स रिवॉर्ड्स एंड फिक्स्ड सैलरी मिलती रहती है ऑन द कॉन्टिन्यूस बेसिस. So yes, these are the major difference between the entrepreneurs and managers. Entrepreneur और managers के बीच में ये difference है. Now there was a few quotations about the entrepreneurship. अगर हम entrepreneurship की बात करते हैं तो there were few quotations. हमारे पास कुछ quotations हैं जो हमें entrepreneurship के बारे में और clear idea दे रहे हैं. If you were discussing about entrepreneurship is a risky. You should be prepared to fail. If you can't handle failure, then it's not your cup of tea. That's very obvious कि अगर आप it's a kind of a risk. जैसा कि अब तक this is on a third, we are on a third session और हम लोग इससे पहले 2 सेशंस में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि एंटरप्रेन्योर्स वो पर्सन होते हैं जो एक्चुअली रिस्क को बेयर करते हैं. मतलब वो फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, वो आपका अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल वो मटेरियल रिस्क हो सकता है, आपका साइकोलॉजिकल रिस्क हो सकता है. देयर वर द एन नंबर ऑफ रिस्क ऑलवेज अटैच विद योर बिजनेस. सो इन दैट टर्म्स अगर आप एक रिस्क बेयरिंग कैपेसिटीज अपने पास रखते हो एंड यू नो दैट कि आप फेलियर से नहीं घबराते हो, सो इन दैट टर्म्स आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो. सेकेंड इज it is a game of probabilities. You have to be supporting. However good you may be, you may get out of a duck. So that is, yes, it is again a kind of a probability game. Maybe if you have a good luck, so you have a high profits. If you have bad luck, so you have losses. तो in that case probability factor हमेशा होता है. like in terms of investment हो गया, किसी भी तरीके के investments हैं, these if this is a good investment or a bad investment, so in that terms yes एक probability factor हमेशा रहता है. so in that terms you need to be very supportive कि yes I need to do it, और उस केस में risk bearing quality की भी ज़रूरत पड़ती है उसके अंदर. then what you do is not so important, how you do it is what matter. that means आपके एंटरप्रेन्योर्स के अंदर आप क्या कर रहे हो ये ज़रूरी नहीं है, आप कैसे करोगे ये ज़रूरी है. दैट मीन्स हमारे नॉर्मल मार्केट सिनेरियोज भी देखें. सो एन नंबर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स वाज एंटर्ड इनटू द मार्केट विद द सेम कॉन्सेप्ट. हम सेम तरीके से वो मार्केट के अंदर एंटर करते हैं, बट उनके अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है? द मेन डिफरेंस इज कि वो काम कर कैसे रहे हैं, हाउ दे एक्चुअली डू इट. सो इन दैट सेंस वो डिफरेंस मेंटेन करता है आपके करने और आपके किस तरीके से करने के अंदर. आप क्या कर रहे हैं और आप किस तरीके से उसे करेंगे, इन दोनों की डिफरेंस से ही दो कंपनीज के बीच में डिफरेंस आते हैं, दो कंपनीज के वर्किंग एटीट्यूड के अंदर डिफरेंसेस आते हैं. सो दिस इज दी वन ऑफ द 3 डेफिनेशंस अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप जो एंटरप्रेन्योरशिप का आपको एक क्लियर आइडिया दे रहे हैं. नाउ येस देयर वर द फ्यू क्वेश्चंस यू हैव टू डू इट. So in that terms there was first question is how entrepreneurship is different from a manager. एक entrepreneurship manager से different क्यों है? हम लोगों ने अभी इससे रिलेटेड पॉइंट्स पढ़े हैं. अगर क्यों है की बात करते हैं तो yes, entrepreneur is our own boss. entrepreneur तब शुरू होता है जब एक बिजनेस स्टार्ट हो जाती है. entrepreneur risk bearers होते हैं. entrepreneurs की किसी भी तरीके की फिक्स सैलरीज नहीं होती हैं, बट when it comes to the manager side, yes, managers की एक फिक्स सैलरी होती है. मैनेजर्स बिजनेस को रन करने में काम आते हैं. दे एक्चुअली रन अ बिजनेस. मैनेजर्स आर एक्चुअली वर्किंग फॉर दी पर्टिकुलर पर्सन. वो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए परफॉर्म कर रहे हैं. एंड येस, मैनेजर एट द सेम टाइम दे हैव नो रिस्क. उनके पास किसी तरीके का रिस्क नहीं होता. दे जस्ट नीड टू परफॉर्म, दे नीड टू imply their skills. So that comes into the entrepreneurship in the different form of managers. What are the functional areas in
इन एंटरप्रेन्योरशिप। यस, हम लोगों ने जितने भी एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड अभी फंक्शन एरियाज को स्टडी किया, जितने भी फंक्शन जो एक बिजनेस परफॉर्म करता है, 7 फंक्शन वी वर डिस्कसिंग अबाउट the admin and IT, the HR, the finance, the research and development, the marketing services, the customer services, and your admin part. So these are the 7 resources, 7 functions जो कि हम लोगों ने डिस्कस की. So in that terms we have to discuss about it कि वो 7 functions क्यों essential होते हैं एक particular business के अंदर. And yes, at the same time we also have to mention that 3 major area of entrepreneurship, that is innovation, risk and uncertainty bearing, and yes, the organization building. So इन तीनों को और उन तीनों को हमें explain करना है. So yes, this is all about the today's session. So we will winding up for today. Yes, thank you so much.